let's we start with new topic. The new topic is menstrual cycle. Look, to understand menstrual cycle, first of all we should have the quick revision of oogenesis. Look, we have studied during the embryonic stage, couple of million gametes, mother cells, oogonia are present. During that embryonic stage, those oogonia which are diploid 2n means 23 pairs of chromosomes are present. These undergo first division and only prophase 1. Those are called primary oocytes. So look here, this is the ovary during embryonic stage. These all are the 2n oogonia, gamete mother cell, oogonia, diploid 2n, 46 chromosome, 23 pair. They enter into first division but only prophase 1. Now these are known as primary oocytes. And immediately they surround by granulosa cells. This H and every surround by granulosa cells. So this complete structure is now known as primary follicle. Inside cell is a primary oocyte, which is in the first division only prophase 1. And then after at the time of birth, this will be continued. Primary follicle with primary oocyte. After the birth, up to the puberty, most of the primary follicle degenerate. This primary follicle degenerate and only left how many? 60,000 to 80,000. After the attaining puberty, one by one entering new phase. Secondary follicle, it surround more granulosa layer. The primary oocyte, first granulosa layer was present from the birth. Now extra granulosa layer, theca, that is called as theca. Then after this filled with the fluid antrum, the cavity is filled. It is known as tertiary follicle. This theca, internal one, theca interna, this outer one which was formed at the time of secondary follicle, theca external, which में antrum fluid है. वो सेल तो वही है, primary oocyte. This primary oocyte with the only prophase 1 now grows in size and complete its first meiosis, which is unequal in size. Tiny is polar body, first polar body. तो अब बोलो इसके अंदर ये जो इंटरनल theca है वहाँ पे ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है ना, जो डिजनरेट भी हो जाता है, क्या होता है, we are not sure about it. And second haploid, this is the secondary oocyte. This secondary oocyte large with a bulk rich cytoplasm. Now this secondary oocyte attain one extra layer. That is called as zona pellucida. This is known as Graafian follicle, mature follicle. And these break and this release. What is the name? Released secondary oocyte with this extra developed that zona pellucida. This is known as ovulation. बरोबर है? तो ये ovulation होगा तो क्या होगा? When it entering oviduct, fallopian tube, fertilization will take place. Fertilization होके जब वो oviduct fallopian tube में जब होके when it enter into the uterus, तो uterus should be ready to receive the embryo.
फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये सब पूरा एक दूसरे के साथ मिक्स है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा उसको देखते हैं। चलो व्हाट हैपन, जब प्यूबर्टी आ गई क्या होगा, ओवरी क्या था, प्राइमरी फोलिकल। चलो प्राइमरी फोलिकल यहाँ पे आया, यहाँ पे था। The primary follicle means with the primary oocyte, ये यहाँ पे ऐसा होगा, प्राइमरी oocyte with granular layer। और यहाँ पे क्या होगा, ये डेवलप इनटू द वन एक्स्ट्रा लेयर। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेनुलर लेयर। कौन सा, थेका एक्सटर्ना, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, ये बना सेकंडरी oocyte। तो इसके अंदर का ये कैविटी इज फिल्ड विद एंट्रम। व्हेन दिस कैविटी फिल्ड विद द एंट्रम, और कैविटी कैसे फिल हुई, एंट्रम से, एंट्रम से फिल हुई तो इसको ने क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, बरोबर। चलो ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल बना, तो फिर क्या होगा बोलो, ये है यहाँ से ये जो है जोना पेलुसिडा लेयर, इतना होते तक यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम नॉर्मल डेवलपमेंट कर, नॉर्मल डेवलपमेंट। तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक, तो ये क्या रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte जिसने फर्स्ट कंप्लीट किया था डिवीजन, और ये इसमें एंटर हुआ। तो इसमें जो एंटर हुआ तो बोलो क्या होगा, अगर जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो फर्टिलाइज होके यहाँ पे आएगा। तो फॉर दैट दिस एंड्रोमेट्रियम डेवलप इन एक्स्ट्रा लेयर्स इन ब्लड कैपिलरीज। तो क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम होगा। हमको ये समझना है कि जब ये रिलीज होके यहाँ पे आया, बट क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एम्ब्रियो नहीं था, तो क्या होगा बोलो, ये सेकेंडरी oocyte आया यहाँ पे आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट करेगा। अभी उसका सेकंड डिवीजन बाकी था, सेकंड डिवीजन नहीं हुआ तो डिसइंटीग्रेट बोलो, वो यहाँ तक आते हुए डिसइंटीग्रेट हो गया। सो व्हाट डज इट मीन, देयर इज नो नीड ऑफ एंड्रोमेट्रियम, सो दिस एंड्रोमेट्रियम आल्सो break with its blood capillaries and this all liquid flows out through the cervix and vagina. This is called menstrual flow. बोलो, ये यहाँ से रिलीज हुआ ओव्यूलेशन होके, और यहाँ से आके डिसइंटीग्रेट हुआ, और ये क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट होके मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हुआ। कितने डेज होते हैं, 14 डेज। बोलो, जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो क्या होगा, दूसरी प्राइमरी follicle will start to develop. Be careful. 1 to 5 days. Days 1 2 3 5. बोलो क्या हो रहा है, अगला जो फर्स्ट जो भी ब्लड वेसल लेवल था वो फ्लो हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो। दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कंटिन्यू फॉर द 1 to 5 days, 3 to 5 days। और वही टाइम पे यहाँ पे क्या एक्टिव हो गया, न्यू प्राइमरी फॉलिकल।
ये प्राइमरी फॉलिकल बोलो एक्टिव हो गया, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये प्राइमरी oocyte है और ये वो प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग क्या आएगा, ग्रेनुसा लेयर बोलो है ये, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ से फ्लो चालू है 1 to 5 days, 1 2 3 4 5 days, in some only 3 days, in some it may be 5 days, and it is not necessary always in 3 days or always 5. In one female maybe one of the 3 days, second menstruation maybe 3 days, third में 5 days, fourth में 4 days, once again 3 days, once again 4 days, कुछ भी होगा, means 1 to 5 days। बोलो यहाँ से ये फ्लो चालू है जब ये क्या एक्टिव हो गया, व्हाट इज गोइंग टू एक्टिव प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एक्टिव हुआ, बरोबर समझना, बोलो प्राइमरी फॉलिकल एक्टिव हो गया है यहाँ से, ये 5 डे ओवर हुआ तो ये फ्लो भी बंद हो गया, यहाँ पे बोलो इसके आजू बाजू एक न्यू ग्रेनुसा लेयर थेका डेवलप हुआ, तो ये प्राइमरी फॉलिकल में से क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल बना जब इसके अंदर बोलो यहाँ पे लिक्विड एंट्रेम फील हुआ उसकी कैविटी में, सो दिस टर्न्स इनटू द टर्सरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल बनता है तब यहाँ पे एंडोमेट्रियम उसका नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोलिफरेशन, बरोबर समझना, तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट करा, यहाँ सेकेंडरी से टर्सरी एंट्रेम फॉलिकल बन गया। चलो यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte जो था, यानी प्राइमरी oocyte का फर्स्ट डिवीजन ओवर हो गया, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी पोलर बॉडी को तो बोलेंगे नहीं। चलो ये जो हुआ ये तुरंत ही बोलो जस्ट क्या हुआ, इसने क्या डेवलप कर लिया, एक्स्ट्रा जोना पेलुसिडा, तो ये बन गया मैच्योर यानी ग्राफेन फॉलिकल, वहाँ तक इसका भी जो नॉर्मल डेवलपमेंट था वो हो गया। These take 14 डे, कितने डे 14, चलो 1 से 5 डे तक वो मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, 6 to 14 डेज में ये पूरा डेवलप हो गया, क्या से क्या डेवलप हुआ, प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफेन फॉलिकल, और यहाँ पे एंडोमेट्रियम का नॉर्मल डेवलपमेंट। On 14th day what happened, this ग्राफेन फॉलिकल breaks, as it breaks तो सेकेंडरी oocyte with the zona pellucida रिलीज हुआ, जोना पेलुसिडा रिलीज हुआ तो क्या हुआ, ये पॉसिबल कि वो यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप होना चाहिए, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, तो बोलो बरोबर समझना, ये जब ये यहाँ पे एंटर हो गया, एंटर हुआ तो बोलो ये जो स्पेस थी किसकी, ग्राफेन फॉलिकल की, वो एक येलो लेयर में टर्न होती है, उसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। तो हमको 3 साइमल्टेनियसली समझना है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है 16 देखो, सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब में एंटर होता है, और थर्ड क्या, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर डेवलप करता है, वो एक्स्ट्रा लेयर डेवलप हुआ, एक्स्ट्रा लेयर किसके लिए, ये फर्टिलाइज होके आएगा, आज हम क्या समझ रहे हैं, फर्टिलाइज नहीं होता, चलो 16 डे से कौन से डे तक, 28-29 डे तक ये चलता रहता है, बट ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, यहाँ पे आके ये डिसइंटीग्रेट हो गया 27-28 डेज को, जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ कॉर्पस ल्यूटियम भी डिसइंटीग्रेट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट, एज इट डिसइंटीग्रेट it will not secrete progesterone, so in the absence of the progesterone on 28-29 days this endometrium will break and release from the vagina. This is called menstrual flow, and menstrual flow means first day to 5 day, जैसे ये फ्लो स्टार्ट हुआ, इसका तो हो गया था ये एक न्यू प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट, और यहाँ से फ्लो चालू है, यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट चालू है, बरोबर समझना, ये फ्लो है वो प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल का हैगा, तो प्रीवियस एंड हो गई उसके लिए तो फ्लो हुआ, तो प्रीवियस एंड हुई तो न्यू यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और ये प्रीवियस का फ्लो है वेस्ट फ्लो, वेस्ट मटेरियल, तो 1 to 5 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल एंड प्राइमरी oocyte एक्टिव हो गए,
5 डेज तक एक्टिविटी रही, चलो 1 to 5 डेज एक्टिविटी रही, फिर 6 to 14 डेज को क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज। व्हाई फॉलिकुलर फेज, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफिन फॉलिकल डेवलप होती है। बोलो 1 to 5 डेज में ये फ्लो ओवर हो गया, तो ये फ्लो ओवर हो गया, अभी अब फ्लो नहीं है, बट ओवरी में व्हाटएवर इंटरनल चेंजेस, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर इसका अंदर फर्स्ट डिवीजन ओवर, पोलर बॉडी, जोना पेल्यूसिडा लेयर डेवलपमेंट, इट टर्न्स इनटू ग्राफिन फॉलिकल। कौन सा डे आ गया, 14 डे को ग्राफिन फॉलिकल ब्रेक हुई, एंड सेकेंडरी उस साइड मींस ग्राफ, सेकेंडरी उस साइड यहाँ से आके इसमें एंटर हुआ, और वो एंटर हुआ तो बोलो क्या हुआ, 3 चेंजेस। ये जो स्पेस था ग्राफिन फॉलिकल का वो क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, एज वेल एज यहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट तो पहले हो गया था। चलो बोलो यहाँ से वो यहाँ पे आया, कौन सा डे, 16 ऑनवर्ड्स, 28 डे को आते तक हमको यहाँ अभी वही समझना है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इससे कंट्री साइड डिसइंटीग्रेट हुआ, इधर से कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम में से जो प्रोजेस्टेरोन आता था वो जो एंडोमेट्रियम डेवलप करता था, इन द एब्सेंस ऑफ दैट प्रोजेस्टेरोन दिस एंडोमेट्रियम ब्रेक एंड दैट ऑल फ्लोस आउट। ये फ्लो आउट हुआ मींस कौन सा डे गिनने का, 1 to 5। 1 to 5 डे आया तो बोलो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से प्रीवियस का ये फ्लो चालू है, वेस्ट मटेरियल इसको हम बोल देंगे। अब बोलो एज वेल एज सेम टाइम एक ओवरी के अंदर बोलो यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल था उसका क्या डेवलप, क्या एक्टिव हो गया, वो प्राइमरी फॉलिकल, बोलो ये प्राइमरी फॉलिकल 1 to 5 डेज में एक्टिव हो गया। यहाँ पे 1 to 5 डेज में डेट मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू है, 5 डे में वो ओवर हो गया, यहाँ तक बोलो 5 डे में क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, बोलो वहाँ तक ये नॉर्मल लेयर एंडोमेट्रियम डेवलप, नॉर्मल लेयर, नॉट एक्स्ट्रा विच सपोर्ट द एम्ब्रियो, नॉर्मल जैसा हमारी स्किन नॉर्मल है। बोलो अब हमने जिसमें ये फर्स्ट डिवीजन ओवर हुआ, सेकेंडरी उस साइड दिस डेवलप है, पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, कौन सा डे आ गया, 14। ऑन द 14 डे ये ब्रेक हुआ ग्राफिन फॉलिकल, सेकेंडरी उस साइड विद द जोना पेल्यूसिडा रिलीज हुआ। बोलो 14 डे को रिलीज हुआ तो 3 कंडीशन, नंबर 1 ये जो स्पेस था वो स्पेस बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, ये अंदर एंटर होगा, आगे जाके हम अनफर्टिलाइज कंडीशन एंड डिसइंटीग्रेट होगा वो समझने का है, बट ये कॉर्पस ल्यूटियम इसका सिक्रेशन करेगा प्रोजेस्टेरोन, तो बोलो इसको पता नहीं है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं, बट दिस रिमेन रेडी टू रिसीव एम्ब्रियो, सो व्हाटएवर दिस अंडर द प्रोजेस्टेरोन पूरी तैयारी कर लेता हैगा एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। बोलो क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम, ग्लैंड्यूलर और ब्लड कैपिलरी वाला। ये सब होते हुए और ये यहाँ पे आया तो लगभग 28 डेज होने को आएंगे, क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन, सो इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन 28 डे ये डिसइंटीग्रेट हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हुआ, व्हाट विल बी हैपन इन एब्सेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, देयर इज नो प्रोजेस्टेरोन means no maintenance of the endometrium, so this endometrium will break and this flows out। और ये फ्लो आउट हुआ कि तुरंत ही यहाँ से ये फ्लोज हो गया मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो 1 to 5 डेज तक मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू रहेगा, इसको मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। वहाँ तक एक दूसरा प्राइमरी फॉलिकल एक्टिव हो जाएगा, 1 to 5 डे मेंस्ट्रुअल फ्लो, एक न्यू प्राइमरी फॉलिकल एक्टिव हो गया। बोलो 6th डे को क्या होगा, ये फ्लो बंद हो गया क्योंकि सब मटेरियल वेस्ट निकल गया, एज वेल एज बोलो ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा और यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडरी में से टर्सरी बनेगा, टर्सरी में से बोलो ये इसमें फर्स्ट डिवीजन ओवर होगा, सेकेंडरी उस साइड बनेगा, सेकेंडरी उस साइड बनेगा कि वो एक न्यू लेयर डेवलप करेगा, जोना पेल्यूसिडा,
ये सब डेज कौन से आए 14 डेज में 6 to 14 days it is a follicular phase. Follicular phase में normal endometrium develop हुआ, not to receive, just only normal. 14 डे को क्या हुआ, ये फोलिकल ग्राफिन फोलिकल ब्रेक हुआ, बोलो ग्राफिन फोलिकल ब्रेक हुआ तो यहाँ से सेकेंडरी oocyte विद जोना पेल्यूसिडा रिलीज हुआ, बोलो वो यहाँ अंदर आएगा तो सो व्हाट, ये एम्प्टी स्पेस है उसकी और यह अंदर आया, दैट मीन देयर इज चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. सो व्हाट विल बी हैपन, दिस टर्न्स इन कॉर्पस ल्यूटियम, इट सीक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, देयर इज चांसेस ऑफ द एम्ब्रियो, तो इट स्टार्ट टू डेवलप ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम. कब तक चलता रहेगा, 28 डेज तक चलता रहेगा, 15 to 28 डेज तक. 28 डेज को यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सका, मीन्स वो सेकेंडरी oocyte जिसका भी सेकंड डिवीजन भी बाकी था वो डिसइंटीग्रेट हुआ एज वेल एज दिस कॉर्पस ल्यूटियम आल्सो गेट डिसइंटीग्रेट. एज दिस कॉर्पस ल्यूटियम गेट डिसइंटीग्रेट व्हाट हैपन, वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो क्या नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरॉन. देयर इज नो प्रोजेस्टेरॉन मींस दिस विल ब्रेक. बोलो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर हो गया, ये भी गया, बोलो क्या होगा यहाँ से 5 डेज तक, 3 to 5 डेज तक ये फ्लो चालू रहेगा, इसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज. वो 5 डेज तक भी रह सकता है, वहाँ तक एक न्यू प्राइमरी फॉलिकल बिकम एक्टिव. बोलो ये 5 डेज में फ्लो ओवर हो गया तो 6 to 14 डेज उसको ने बोलेंगे फॉलिकुलर फेज. ये फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, दिस प्राइमरी फॉलिकल टर्न्स इनटू सेकेंडरी इनटू टर्सरी, इसके अंदर डिवीजन होके सेकेंडरी oocyte बनेगा, उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा बनेगा, मींस क्या बनेगा, ग्राफिन फॉलिकल. कौन सा डे आ गया 14 डे, वहां तक साइमल्टेनियसली इसके साथ यहाँ पे भी नॉर्मल एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट होगा, नॉर्मल. 14 डे को क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ, ग्राफिन फॉलिकल ब्रेक हुआ, सेकेंडरी oocyte विद जोना पेल्यूसिडा रिलीज हुआ, तो बोलो ये स्पेस है वो स्पेस काइड में कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम, और वो कॉर्पस ल्यूटियम किसको सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन. तो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट से क्या होगा, एंडोमेट्रियम एक्स्ट्रा डेवलप होगा. क्यों एंडोमेट्रियम एक्स्ट्रा डेवलप होगा, because this secondary oocyte is inside here, it may get fertilized and turn into the embryo. तो एम्ब्रियो रिसीव करने के लिए इम्प्लांटेशन करके डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा. बट बोलो वो 15 डेज से 28 डेज में बोलो ये यहाँ पे आके सेकेंडरी oocyte डिसइंटीग्रेट हो गया, नो फर्टिलाइजेशन, ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डिसइंटीग्रेट हो गया. कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है तो क्या नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होके उसका फ्लो स्टार्ट. लास्ट टाइम लेते चलो यहाँ से फ्लो स्टार्ट हुआ तो उसको हमने बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज. बोलो मेंस्ट्रुअल फेज में 1 to 5 डेज में जब ये मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हुआ तो बोलो क्या हुआ, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज से फ्लो चालू है और यहाँ पे एक न्यू प्राइमरी फॉलिकल एक्टिव हो गया. बोलो 6 to 14 डेज में क्या होगा, इसको फॉलिकुलर फेज कहेंगे. बोलो ये फॉलिकुलर फेज में बोलो क्या होता है ना, तो ये फॉलिकुलर फेज में बोले यहाँ से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल सब बनता है जब यहाँ नॉर्मल एंडोमेट्रियम भी डेवलप होता है, नॉर्मल नॉट डेट सपोर्टेड. तो इतना हुआ, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बना, ग्राफिन में अंदर जोना पेल्यूसिडा बना, एंड ऑन द 14 डे बोलो क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ. ये ब्रेक हुआ तो क्या है, क्या रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte विद जोना पेल्यूसिडा, और ये जो गैप बनी दैट गैप इज फिल्ड विद द कॉर्पस ल्यूटियम. मींस क्या है, दिस एंटर इन द ओविडक्ट एंड मे टर्न्स इनटू द एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन से एंडोमेट्रियम को डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बरोबर है. तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट होगा फिर क्या होता है, तो क्या होता है इधर ये कॉर्पस ल्यूटियम से क्या सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन से क्या होता है, एंडोमेट्रियम डेवलप होता है. बोलो फर्टिलाइज कब 16 to 28 डेज.
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डिसइंटीग्रेट होगा, और पॉजिटिव डिसइंटीग्रेट होगा, और पॉजिटिव डिसइंटीग्रेट होगा तो वो यहाँ नहीं आएगा, सॉरी प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा, तो ये सब रिलीज होगा. दिस विल कंटिन्यू. जस्ट ओपन योर बुक, the page number 49, menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primates, example monkeys, apes and human beings, is called a menstrual cycle. The first menstrual begins at puberty and is called menarche. First time होगा उसको menarche कहते हैं. In human females, menstruation is repeated at one average interval of 28 to 29 days. And the cycle of the event starting from the menstruation till the next one is called the menstrual cycle. The OM is पूरा cyclic repetition. कितनी बार मैंने repeat करा? 6-7 टाइम I don't know. Cyclic menstruation. The OM is released ovulation during the middle of menstrual cycle. Number of times for 28 days में 14 day होगा. The major events of the menstrual cycle are shown in figure that 3.9. अभी देखते हैं हम. The cycle start with the menstrual phase. बोलो first phase बोलते हैं 1 to 5 days. जब flow चालू होता है days 1 to 5 is the menstrual phase. Menstrual breakdown of endometrium and blood vessel of uterus. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of uterus and in blood vessel which forms liquid and comes out through the vagina. आगे का menstrual cycle का जो fertilization नहीं हुआ, secondary oocyte disintegrate हुआ तो उसका जो liquid आ रही है वो flow है. तो ये flow start हुआ, वहाँ तक अपने बोले new cycle तो है. ये फ्लो है वही न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, उसका इंडिकेशन है कि फर्स्ट ओवर हो गया और सेकंड स्टार्ट हो गया. मेंस्ट्रुएशन only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indication of the pregnancy. अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ उसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो फर्टिलाइजेशन आया था वो इम्प्लांट हो गया, मींस दैट लेडी इज pregnant. However, it may also be caused due to some other reason also, that the stress and the poor health. Poor health और वो stress हो तो भी कितनी बार menstruation रुक भी जाता है. The menstrual phase is followed by the follicular phase. चलो menstrual phase 1 to 5 days है, फिर 6 to 14 days को क्या बोलेंगे? Follicular phase. During the phase, primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously endometrium of uterus degenerates to proliferation. है ना? और प्राइमरी follicle तो Graafian और वहाँ तक ये normal development endometrium, उसको बोलेंगे proliferation. और phase को बोलेंगे follicular phase. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. Simultaneously, endometrium of uterus also regenerates to proliferation. बराबर? These changes in the ovary and the uterus induced by the changes of the levels of the pituitary and ovarian hormones, जो अभी हम यहाँ समझते हैं फिगर के साथ. The secretion of gonadotropins LH and FSH means pituitary. Gradually during the follicular phase. अब इसको समझने के लिए हमको ये फिगर यहाँ पे समझना है. ये तो आ गया है, ये हमको सब समझ में आ गया. तो अब देखो the figure given on the page number 50, पूरा चार्ट 4 पार्ट में. सेकंड पार्ट तुम देखोगे तो ओवरियन इवेंट्स, फोर्थ पार्ट ऊपर से लास्ट पार्ट देखोगे तो यूटेरियन इवेंट्स है. बरोबर देखना है. यहाँ पे ये जो है तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ. ऑलवेज हम स्टार्ट करेंगे कौन से पार्ट से? सेकंड पार्ट से. चलो ये पूरा फेज यहाँ पे ओवर होता है, ये पूरा फेज यहाँ पे ओवर होता है. तो देखो यहाँ इसको याद रखने के लिए यही टेक्निक है कि बरोबर समझना. ये फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सॉरी फेज नहीं सेकंड पार्ट बताया, यहाँ थर्ड पार्ट है और दिस इज द लास्ट पार्ट.
बोलो फर्स्ट पार्ट जो है वो काय के लिए है ना, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। सेकंड पार्ट काय के लिए, ओवेरियन हॉर्मोन्स, ओवेरियन इवेंट्स। चलो ये है ओवेरियन इवेंट्स। बोलो समझ में आ गया? बोलो यहाँ से अपने डेज 1 ये फर्स्ट डे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 and 28 29। बोलो हमको पता है 14 डेज को क्या होता है ना, ये 14 डेज मिड पार्ट है। बोलो ओवेरियन में बोलो यहाँ क्या होता है, तो दिस ब्रेक ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हुआ और ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। ये इतना मीन्स बोलो यहाँ पे 1 to 5 डेज में बोलो क्या हुआ था, मेनिस्ट्रुअल फेज हुआ था, मेनिस्ट्रुअल फ्लो हुआ था, जब प्राइमरी oocyte एक्टिव हुआ था। तो ये प्राइमरी oocyte एक्टिव, यहाँ से यहाँ तक मैं बोलो ये वो क्या बना, सेकेंडरी oocyte, टर्सरी सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। ये सेकेंडरी, टर्सरी, फिल्मिली, एंट्रम एंड ग्राफियम, ये उसका डिवीजन हुआ। उसके आजू बाजू क्या है, जोना पेलुसिडा, ये उसका लिक्विड, ये जो भी कुछ है समझ में आ गया। 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल फ्लो भी चालू है, प्राइमरी oocyte ये सब फॉलिकल डेवलप भी हो गया। चलो ये रिलीज हुआ। ओव्यूलेशन 14 डेज को ओव्यूलेशन हुआ, तो बोलो यहाँ पे क्या हुआ, ओव्यूलेशन जहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल था वहाँ पे सॉरी जहाँ पे हाँ ग्राफियन फॉलिकल था वो एम्प्टी हो गया है, वो अपने जगह एक स्पेशल डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। हम कौन सा स्टेज समझ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो बोलो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट एज वेल एज बोलो। अब इसमें से हमको लास्ट स्टेज भी आना चाहिए, बोलो वो 1 to 5 डेज। तो बोलो प्रीवियस का क्या था, एंडोमेट्रियम जो डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट होके उसकी ब्लड वेसल में सब फ्लो होके बाहर आ गया है। बोलो यहाँ पे आगे का जो पूरा ओवर हो गया, तो उसका जो प्रिपरेशन था वो जो प्रिपरेशन है वो सब फ्लो होके बाहर आ गया है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, वो फ्लो बाहर आ गया है, वो स्टेज यहाँ पे ओके। यहाँ पे बोलो न्यू एक्टिवेट भी हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आया। बोलो यहाँ तक व्हेन इट कम अप टू हियर व्हाट हैपन, एंडोमेट्रियम डेवलप। ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ, नॉर्मल एंडोमेट्रियम, उसकी स्किन जैसा जो डेवलप होता है वो, नॉट द कंप्लीट दे वी सपोर्ट द एम्ब्रियो। ये अपना डेवलपमेंट ओवर हो गया। बोलो ये नॉर्मल डेवलपमेंट ओवर हो गया, यहाँ से फ्लो स्टार्ट हुआ था, डिसइंटीग्रेट, ये नॉर्मल डेवलपमेंट। बोलो एज दिस नॉर्मल डेवलपमेंट टेक प्लेस, बोलो यहाँ पे ये ओव्यूलेशन हुआ, मींस ओविडक्ट में एंटर हुआ, देयर इज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइज एम्ब्रियो आएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, बोलो ये जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो रहेगा, तो बोलो यहाँ से समझ में आना चाहिए। So this is the extra development with the fully blood capillaries etc. बट बोलो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वही स्टेज हम समझते हैं, तो वापस इसका डिसइंटीग्रेशन। ये तो समझ में आ गए, जिसको ये दो पार्ट समझ में आता है उसको ये समझ में आ जाता है, जिसको ये समझ में आ जाता है उसको ये नहीं समझ में आ जाता है। बोलो क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में कौन सा आएगा, पिट्यूटरी हार्मोन। बोलो फर्स्ट पार्ट में बोलो पिट्यूटरी हार्मोन स्टार्टिंग 1 to 5 डेज में खाली एक हाई लेवल में क्या है, FSH। देखो ये रेड कलर में शो कर रहा है, 1 to 5 डेज FSH। फिर FSH कम है, हाँ, जो कि 14 डेज में सब इंक्रीज होता है, बट ये FSH लोअर लेवल
फिर हाँ ये वापस 1 to 5 डेज यानी वो इंक्रीज लेवल जाना है। बोलो FSH के साथ में बोलो वहाँ पे क्या आएगा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो 1 to 5 डेज में लो रहता है, बाद में हाई रहता है, ऑलवेज ही हाई, या 14 डेज में दोनों में हाई, दोनों हाई है। बोलो ये 1 to 5 डेज में वो लो जाए क्योंकि न्यू स्टार्ट कर FSH है LH। चलो अब इसके साथ में हमको समझना है ये पिट्यूटरी हार्मोन लेवल हो गया, ये ओवेरियन हार्मोन। बोलो ओवेरियन हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बोलो पहले हम यहाँ पे एस्ट्रोजन शो करते हैं। बोलो FSH एस्ट्रोजन यहाँ पे जो कलर में लिया है वही ब्लू कलर में है, तो लोग एस्ट्रोजन का लेवल याद रखना है। पहले बोलो कैसा आएगा, एस्ट्रोजन हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, एस्ट्रोजन ज़्यादा रहेगा, ओवुलेशन के टाइम में थोड़ा और देना पड़ेगा, फिर कम हो गया, फिर पूरा जाएगा, फिर ये जाएगा। प्रोजेस्टेरोन समझ में आना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन कब आता है, ओवुलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तब। तो बोलो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल तो बोलो कैसा रहेगा, कम ही रहेगा। जब ये यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम आया तब बढ़ाने फिर वापस। दिस इज द एस्ट्रोजन, this is the progesterone, this is the FSH, this is the LH। ये जो है यूटेरियस हार्मोन। इसके साथ में हम ऐसा याद रख के हमने करेंगे, ये वैसे फिगर सबको बहुत डिफिकल्ट लगती है, बहुत ईजी है। 4 5 याद रखने के, फर्स्ट सेकंड रो करने का, 14 डेज को ओव्यूलेशन बताओगे तो समझ में आ जाएगा। 1 to 5 में एक्टिवेट, फिर वेरियस फॉलिकल, फिर एंड में कॉर्पस ल्यूटियम एंड डिसइंटीग्रेशन। अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोलो 1 to 5 मिनिस्ट्रियल फेज मींस फ्लो बाहर निकल रहा है वो, और नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस मींस एंडोमेट्रियम। फिर ये हो गया तो एम्ब्रियो रिसीव करने के लिए इसका एक्स्ट्रा डेवलपमेंट। FSH क्या रखने का, FSH खाली स्टार्टिंग पॉइंट में हाई रहेगा LH से, फिर कम रहेगा। हाँ 14 देखो तो सब लेवल हाई हो गया, तो FSH पूरा हाई हो गया, फिर लो ही रहेगा। LH लो रहता है, फिर ऑलवेज हाई रहता है, तो न्यू साइकिल वापस लो हो जाएगा क्योंकि ये स्टेप कंटिन्यू। एज वेल एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन बोलो कैसा रहेगा, हाई रहेगा, प्रोजेस्टेरोन लो। प्रोजेस्टेरोन खाली यही पार्ट में जब कॉर्पस ल्यूटियम आता है तभी। मेनी टाइम स्टूडेंट पहले प्रोजेस्टेरोन याद रखते हैं सर, फिर बोलते हैं सर एस्ट्रोजन ऐसा हमने करके ये यहाँ से ऐसा इसको क्रॉस करना, ठीक है। सो लो ऑन द पेज नंबर 51, gonadotropin LH and FSH increase gradually during the follicular phase। बोलो FSH and LH gradually increase during the follicular stage, जो follicle आता है जब थोड़ा लेवल बढ़ता है, and stimulate follicular development, उसके लिए ये follicle सब development, as well as secretion of estrogen by growing follicles। बोलो secretion of estrogen, ये follicle है वही estrogen को secrete करता है। याद रखना estrogen is secreted by the growing follicles। Both LH and FSH attain peak level at the middle of the cycle। और LH and FSH peak level पे आता है। Rapid secretion of LH leading to the its maximum level during the mid cycle called LH surge induce rupture of Graafian follicle। बोलो ये जो है वो हाई लेवल इंक्रीज हुआ LH का, तो वो Graafian follicle रप्चर होता है। They find that the release of the ovum is ovulation। The ovulatory phase भी बोलते हैं, is followed by the luteal phase during which the remaining parts of the Graafian follicle transferred into corpus luteum। बोलो ये जो था वो काइमेटस हुआ corpus luteum। Remaining corpus luteum, the corpus luteum secrete large amounts of progesterone which is essential to maintenance of the endometrium। बोलो इसने हमने किसको अपने डेवलप किया, प्रोजेस्टेरोन। इसके लिए क्या डेवलप हुआ, एंडोमेट्रियम। secrete large amounts of protein which is essential to maintain the endometrium। Such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। प्रेगनेंसी के साथ दूसरी जो भी इवेंट्स है वो। During the pregnancy all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation। अगर जो प्रेगनेंसी आ गई तो क्या होगा, ओव्यूलेशन मेंटेन होगा, तो बोलो क्या होगा, वो प्रोजेस्टेरोन आता रहेगा, तो ये रहेगा, और ये
आएगा एम्ब्रियो। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. ये corpus luteum क्या हुआ? Degenerate हुआ. There is in the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. The course of disintegration of the endometrium leading to the menstruation, marking a new cycle. In human being, menstrual cycle cease about 50 years of the age. That is formed as the menopause. Cyclic menstruation is an indicator of the normal reproductive cycle. ऐसा ये साइक्लिक चालू रहेगा तो वो ऐसा है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल चालू है, फेज चालू है, एंड इट एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्ड एंड मेनोपॉज. कहाँ से कहाँ? फर्स्ट को बोलेंगे मेनार्ड, स्टॉप हो गया उसको बोलेंगे मेनोपॉज. ओके.